pollution levels lingering in the severe category, Delhi is struggling for fresh air. I'm standing at Kartavya Path and behind me is the iconic India Gate. This spot has become a prominent spot to check the visibility, and as of today we have a better visibility. You can see India Gate in the backdrop where you are able to see India Gate from 200 meters, but on the other side we have Rashtrapati Bhavan. In fact, this is the Kartavya Path, and in fact you can get an idea of the visibility that Rashtrapati Bhavan, which in general days is visible from this particular spot, is invisible today. And in fact, when we talk about the conditions in the national capital, so we know that how the fourth level of graded response action plan has been invoked. Several sort of measures, several sort of steps have been taken by the state governments. In fact, schools have been shut and all other things. In fact, yesterday, Environment Minister of Delhi announced that how Delhi is going to implement odd and even scheme for the vehicles here. After that, a lot of deliberation is onto the fact that how there are several factors that are contributing to the pollution levels in the national capital. Once again, if I can show you the view, there you see people have come here for the morning walk, in fact for the cycling, but as of now, because of the pollution problem, in fact, experts say that this condition is very dangerous, very harmful for not only those who have some sort of respiratory disease or respiratory problem, but also for those who are healthy people. As of now, everyone is looking forward to all these steps taken by the government, because people here in the national capital are waiting for some sort of relief, that they are looking forward to government that they will take some sort of step, and after that Delhi will get some sort of relief from this particular pollution problem. I'm joined by a group here at India Gate who has come a long way from Pune to Delhi. आप लोग मुझे बताइए, साइकिल से आए हैं पुणे से दिल्ली तक, और दिल्ली में तो प्रदूषण है, तो किस तरह से अब आगे देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कहें कि जो कंडीशन बन गई राजधानी की? इधर तो हवामान बहुत खराब है. हमारे उधर महाराष्ट्र में पोल्यूशन नहीं है इतना बहुत ज़्यादा है. महाराष्ट्र, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने लग गया है. हमारे उधर अच्छा है, इससे बेटर है. इससे बेटर. क्या आपको लगता है कौन जिम्मेदार है इस समस्या के लिए, इस परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकारों की जिम्मेदारी है या फिर ये लोग जिम्मेदार है? नहीं सर जी. हाँ, कौन जिम्मेदार? इसके लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन हम आम लोग भी इसमें जिम्मेदार है. जैसे कि हम गाड़ियाँ ले रहे, गाड़ियाँ भगा रहे रोड के ऊपर, थोड़ा भी अगर चलना होगा तो हम गाड़ी लेके चलते हैं. इससे अच्छा है हम थोड़ा सा साइकिल का भी उपयोग करें. जैसे कि हम लोग अभी पिछले 4 साल से कर रहे हैं. कोरोना में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे हमने साइकिल चालू की थी, लेकिन कोरोना में जितने भी बीमारियां हो गई उसमें हम में से कोई 10-12 लोग, इसमें से कोई भी इतना बीमार नहीं हुआ उसके बाद. और तब से हमने जो साइकिल चालू की, अभी 4 साल से पिछले साइकिल चला रही है. पिछले साल हम बालाजी की राइड किए और इस साल 1,500 किलोमीटर चला के. नहीं, साइकिल आप चला रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन उसी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये पोल्यूशन. आप जो एक्सपर्ट हैं वो तमाम लोग सलाह देते हैं कि बाहर ना निकलें. आप साइकिल तो बेशक सेहत के लिए चला रहे हैं, लेकिन जितना सेहत के बचाव के लिए काम कर रहे हैं उतना ही सेहत खराब हो रही है बाहर. नहीं, वो तो है, लेकिन साइकिल चलाना हमारा रोज का ही है, मकसद है. अच्छा, आप लोग अलग अलग काम साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल के वजह से हमको प्रदूषण का ज़्यादा प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है. अच्छा, क्योंकि हमारा ताकत बढ़ गया है. हाँ. साइकिल चलाने. बेशक साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन मेरा दरअसल सवाल ये है कि साइकिल तो आप अपने कहें कि सेहत के ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं, लेकिन उसी सेहत पे कहें कि कितना बड़ा खतरा है ये प्रदूषण, उसके बारे में बताइए, उसके विषय में बताइए. अभी ये हुआ ही कि इसमें से ये जो प्रदूषण हो रहा है ना, इसमें से जो छोटे बच्चे उनके ऊपर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है. जैसे कि आप देखें कि अभी दिल्ली में, हम महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए, महाराष्ट्र में कम था. हम मानते हैं कि मुंबई पुणे में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हम एरिया में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पे प्रदूषण कम है. और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है. फर्स्ट राजनीति भी हो रही है. जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? राजनीति होनी चाहिए प्रदूषण की, कम से कम ऐसी समस्या जिससे कहें कि पॉलिटिशियंस भी प्रभावित हैं, उन लोगों के परिवार और वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं. आपको लगता है कि राजनीति ठीक है? नहीं, राजनीति इस मैटर में ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को एक साथ जुड़ के इससे सामना करना चाहिए.
अगर हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर ये जिम्मेदारियाँ डालते रहेंगे तो ये कभी ठीक नहीं होगा। अगर ये सरकार बोल रही है, अगर बीजेपी वाले आम आदमी को बोल रहे हैं और आम आदमी वाले बीजेपी को बोल रहे हैं ना, तो ये सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। हम हर एक को एक साथ खड़े रह के हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना।